Hi, good evening everybody. This is Bishwajit Datta, Director ProCLAT, Success at Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. This is a great surprise to all of us that we are supposed to write one more entrance examination for NLSIU Bangalore very specifically, that is NLAT, National Law Aptitude Test 2020. There are so many reasons for the university to conduct a new entrance examinations. Some people are happy, some people are not happy, but we do not know what is going to happen till 12th of September 2020. But then the students don't have any other option other than preparing for just 5 to 6 days, isn't it? Because you cannot complain right now at the moment when you are at the last stage of your preparations. So any change that comes from the university, from the consortium, or from anybody, we have to adhere to that change and we have to work accordingly. So that's the reason why today we have decided, in fact, I have personally decided that what is to be done for this particular exam, what is the demand of the exam. So any preparations that we are doing for the last 1.5 years, is that preparation going to satisfy the need of this particular paper? Because if you go to the notification, you will definitely come to an understanding that there are some model questions that are released by the NLSIU Bangalore. And when I look into the model questions, you will find that you are supposed to write a paper of 40 questions in 45 minutes. Everybody, all of you are aware of this fact. And every right answer will give you 2 marks. And if you make a wrong answer, for that matter, you will lose 0.5. That means it's a big score that you're going to lose. And if you leave that question, you're also going to lose 0.25. That means attempt is the main element of the paper. The NLSIU Bangalore want you to attempt the paper. That means they want to see what is your limit, what you know across the border, across the preparation, what is your output, isn't it? So the body has not left any option to you. You have to attempt the paper. You have to compulsorily attempt the paper. Now, what is to be done in this paper, that we'll understand, keeping the overview of the sample questions given by the NLSIU Bangalore for the NLAT 2020. Okay? Ab dekho, when I look into this paper, no, I could realize that all the preparations that we have done for the last 1.5 years, every preparation is going to satisfy. Your legal reasoning is going to satisfy. That means you are not required to do any extra preparation for this particular exam. You are not supposed to do any extra preparation for logical reasoning. All the critical reasoning part that we have prepared or we are still preparing, it is going to satisfy this particular exam. जो हमने English पढ़ा हुआ है, all that we have covered in English are definitely going to satisfy this particular exam. There are 2 sections on which there are some plus and some minus, and we'll discuss one by one. Number 1 in English, or number 1 in GK. I know that all the current affairs part are absolutely done. All of you must have done the current affairs part, the static part. All are prepared. Undoubtedly, you people have done great. I believe that there are few questions which I have seen in this paper. Out of that, the GK part, which was fully based on the absolute fact, sometimes it will go out of your mind and you may not be able to bring out that answer on the paper. तो ऐसा हो सकता है कि यदि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है जीके का, तो वो मिस आउट हो सकता है, ठीक है ना? बाकी more or less the current affairs and GK will definitely satisfy in the paper. Mathematics, when you realize this fact that in every passage, wherein the passage would have 500 words, you will have to do a mathematical question in that passage, where the passage would deliver a question on logical reasoning, legal reasoning, an English, a GK. This is really little new. But then what kind of mathematics are going to come? Is it all that simple mathematics that would come in the paper? Or am I able to satisfy all my preparations that I have done in mathematics? Is it going to be satisfied? Now, this is a question and it's a challenge. If I look into this paper, no, it is not absolutely memory based. That means I know the formula, I know
the concept of percentage, profit and loss. I know the concept of speed, time and distance or permutation and combination. I'll be able to solve the question. No, it is not so. But the demand of this paper is that if you read a particular context, if you read a particular text, what is all that you understand? What is all that you comprehend? What are the implied elements that you can bring out from the text? What are the direct things that you are able to bring out? What is your argument? Are you able to make an argument out of that particular passage or not? These all things are going to be tested. So what is your reading for the last so many years are going to put an added advantage while solving this particular paper. Today I am trying to figure out, and in fact I am trying to give you a solution. When you know that the coverage of every section in the paper has become equal, that means mathematics 20%, English 20%, logic 20%, legal 20% and GK 20%, wherein we have a platform of working on a paper where mathematics is always 10%, that is CLAT, isn't it? You talk about ALET, it is even less than that. So the question is, when abruptly I am getting a paper having 20% of mathematics portion in the paper, is it not really discriminatory? Isn't it? Because it is definitely going to give some leverage to certain class of people who have good hold on mathematics. Is it really discriminatory? We do not have any option to talk about that. The only thing that we can do it for the next 4-5 days is to what is the solution on the basis of which I'll be able to tackle those questions that would come in the paper. And the idea of today's lecture, in fact today's discussion, is how to tackle those mathematical questions in the paper which almost have a coverage of, exactly have a coverage of 20% in the paper, which is a very top side. So the bottom line is that if you are not able to cut the result, you are out of the competition. It is going to be good for some people, it is going to be very bad for some people. But if you think that if you can do little mathematics and be able to comply with the paper you are able to select, and if that is the idea that comes in your mind quickly, then this class is absolutely for you. This is absolutely for all those people who are at the verge of selections, but just because that mathematics is not a strong section to all those people and they want to feel, oh my God, what will happen to me right now? Kya main mathematics kar sakta hu? And this particular lecture is also for those people who would like to solve the mathematical questions without putting lot of calculations, without doing too much of mathematics. So when you do too much of steps into a question, it definitely going to kill your time, and that's how your chances, your probability of selecting in the exams definitely come down. So do I have an alternative method? Because I know that you are going to face 8 questions of mathematics. So if you leave all of them, ठीक है, यदि आप पूरा का पूरा छोड़ देते हो तो आप जानते हो हर क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे, मतलब टोटल आपके 2 नंबर जाएंगे। और यदि आप सॉल्व करके उसको छोड़ते हो और वो गलत हो जाता है तो आपके 4 नंबर कटेंगे। Is there any way that I'll able to manage that part and I could decrease my negative score? So there are 2-3 things that I would like to bring out in front of you. I hope this is going to help you in your paper. It is going to help you in your paper writing capacity. Now, all of you must have seen this particular passage, isn't it? The passage was not very long. It was not very tough. The language of the passage was easy, in fact. But you will also find that the passage have certain data. So what are the importance of those data when you go for a mathematical question on a passage? That is all we are going to discuss. यदि आप solution को देखो जिसमें mathematical questions को solve किया है, practically ऐसे solutions आप examination hall में नहीं कर सकते हो। जो 2 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं और जिस तरह से आप देखोगे मॉडल क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया है, यदि आप उस पैटर्न पे सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका काफी सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। Is there any alternative method through which I can solve those mathematical questions and can clear the exams? So that is all that I am projecting to discuss. और लास्ट बात, उस तरह के मैथमेटिक्स जो पेपर में आने वाला है उसमें ज्यादातर क्या हो सकता है? I would only say that if you know addition, subtraction, multiplication, division is very important. आज भी डिवीजन में गलतियां हो जाती है करते वक्त. If you know all these 4 elements, small amount of understanding on percentage, small understanding on average, small understanding on ratio,
I think you are able to tackle the paper. They are not 100% going to check rocket science on your mathematical ability. They are 100% not going to talk about the probability or the statistics, but they are definitely going to talk about or discuss that mathematical understanding which somebody should have. It doesn't matter, irrespective of the fact that you are a student of PCM or a PCB or a humanities or commerce, whatever. Those absolutely small element, fraction, infinitely small understanding of mathematics has to be known in the mind of the candidate. This is all that they are going to check upon. तो इसके लिए आप है ना 4 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लो. एक तो आपको सारे कैलकुलेशंस आते हो, समेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. दूसरा चीज आपको परसेंटेज का मतलब पता है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. तीसरी बात आप इतना जान लो कि एवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेजेस को, और चौथा रेशियो क्या होता है. व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज इन द सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, देन वी कैन गो फॉर एन एवरेज and then we can go for a ratio, and how ratio is equivalent to that of percentage, how a fraction is equivalent to a percentage. All those small calculations or interrelation between the values are to be specifically prepared. That is the demand of the paper. तो ये जो पेपर है ना, इसकी डिमांड बहुत इजी है. जितनी सारी प्रिपरेशंस आपने अभी तक की है वो सेटिस्फाई होने वाली है. तो आज का हम डिस्कशन करेंगे जो मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस आएंगे, पर्टिकुलरली उनको टैकल करने का अंदाज क्या होना चाहिए, मैजिक क्या होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट बिफोर दैट मैं आपको साफ साफ ये बात बोलूंगा कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आप उस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें. तो इफ यू रीड दैट टेक्स्ट कंप्लीटली with your heart, mind being present there without any division of your focus, I believe that you are definitely going to bring the important data and on the basis of which you are able to solve the paper. इस एग्जाम में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में जो दिया है उसी को आपको समझना है. उसके अंदर की जो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन है उसको आप टैकल कर सकते हैं विथ द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द argument given in the passage, and based on that you can definitely come out what is the implied conclusion on a particular sentence or a particular understanding. Now what is given in this passage? There are 2 different paragraphs that are given in this particular passage. In the first paragraph there was hell lot of data. तो पहले पैराग्राफ में तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा है, और सेकंड पैराग्राफ में एक एक्सपर्ट का व्यू है. ठीक है ना, एक्सपर्ट का व्यू. ऑल्दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू द होल पैसेज, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू एज टू व्हेन यू रीड द डेटा, how important the data is going to be when you write a paper. For that you have to read at least the most important paragraph with all your mind. इसमें जब 2 पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप कैसे टैकल करोगे क्वेश्चन को, आज हम वो मॉडल तरीका देखेंगे. I have this paper, I hope you too have this paper, you must have read this paper. इस पेपर में पहला पैराग्राफ में बोल रहा है the central concern for Indian decision makers was the continuing influx of Hindu refugees from East Pakistan. Now this is a problem because we are facing a problem. We have a continuous influx of refugees coming from East Pakistan. तो East Pakistan की बात की है तो definitely ये बहुत पहले की बात है. East Pakistan means right now it is a matter of Bangladesh. Up to the, अब देखो ये implied है, you need to bring out of your mind. It does not require too much of knowledge. बट यदि स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑन जनरल नॉलेज यदि आपके पास है, यू आर एबल टू फिगर इट आउट. अप टू द एंड ऑफ जुलाई 1971, 7.23 million had taken shelter in India, and by 15 December an additional 2.67 million had poured in. मतलब 31 जुलाई 1971 तक 7.23 million लोग आ चुके हैं. देखो छोटे छोटे जो कन्वर्जन है ना वो आपको आने चाहिए. दैट इज ऑलवेज नीडेड बिकॉज आपके इस पूरे पेपर में व्हेन आई रीड द नोटिफिकेशन आई डिड नॉट फाइंड कि कहीं पर उन्होंने कैलकुलेटर का यूज करने का प्रिविलेज लिखा हो. आई डिड नॉट फाइंड इट. मे बी पॉसिबल दैट व्हेन यू राइट द ऑनलाइन टेस्ट पेपर तो आपको कैलकुलेटर मिले, बट इफ यू डू नॉट हैव ए कैलकुलेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको अपने हाथ से ही कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, दिमाग से ही कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. तो आपको छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने के लिए थोड़ा सा कन्वर्जन भी आना चाहिए. हालांकि कन्वर्जन की भूमिका होगी सवाल को सॉल्व करने के लिए या नहीं, ये आप अपने लॉजिकल बेंड से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां पर
ये कह रहा है कि 7.23 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी केम टू इंडिया बाय 31 जुलाई 1971 और उसके बाद 15 दिसंबर तक 2.67 एडिशनल रेफ्यूजीज और इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टैंड पॉइंट द कंटिन्यूइंग फ्लो ऑफ रेफ्यूजीज गिव द लाइट टू द क्लेम्स अबाउट इंपेंडिंग नॉर्मलिटी इन द पाकिस्तान। नाउ यू कुड अंडरस्टैंड कि यदि दोनों के में मिला दो 7.23 एंड 2.69, इट वुड कम आउट एज 9.9 मिलियन। 9.9 millions, 1 million is equal to 10 lakhs, मतलब 99 lakh people have migrated from one country to another country। तो जब आपके देश में, हमारे देश में इतना इन्फ्लक्स होगा तो डेफिनेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतने सारे लोग यदि आ रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो ऐसी वजह होगी और इन लोगों पर कुछ तो बीती होगी, तभी तो ये ऐसे रेफ्यूजी बन करके आ रहे हैं। तो यदि कोई अगला व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि नहीं हमारे देश में तो सब कुछ ठीक है, तो ये बात को हम बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव, हमारे सामने एक साक्षात रीजन है। वी कुड फिगर इट आउट कि भाई क्यों आ रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। ऐसे कोई अपना देश थोड़ी ना छोड़ देता है, बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, सामान लेकर के, कोई इतने आसानी से तो छोड़ नहीं देता है। So that is how we can figure it out. Then there was the growing economic burden of maintaining the refugees. The budget presented in May 1971 had provided 600 million rupees for the relief of refugees, but the sum was submerged by the scale of the deluge. In August, the government was forced to present a supplementary demand of 2000 million rupees. अब देखो भाई, जब आपने मई में बजट बनाया तब आपने $600 मिलियन का बजट, 600 मिलियन रुपीस का बजट, सॉरी डॉलर नहीं मिलियन, 600 मिलियन रुपीस का जो बजट है आपने उसको साइडलाइन कर दिया कि इससे हम रेफ्यूजी के लिए, उनके मेंटेनेंस में हम इस पैसे को खर्चा करेंगे। ये मई की बात है। आपके पास बाय द एंड ऑफ 31 जुलाई 7.23 मिलियन रेफ्यूजीज आए। हो सकता है आपने अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे कि इतने सारे लोग कैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 600 मिलियन रुपीस का आपने एक बजट तैयार किया इन ऑर्डर टू गो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेफ्यूजी। आगे क्या होता है, बाय द एंड ऑफ अगस्त आप 2000 मिलियन रुपीस की फिर से डिमांड करते हो कि ये सप्लीमेंट्री वैल्यू हमें चाहिए इन ऑर्डर टू गो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेफ्यूजीज। बाय द थर्ड वीक ऑफ सितंबर it was assessed that maintaining 8 million refugees in the camp for 6 months at the rate of 3 rupees per person per day would amount to 4,320 million rupees, which was equivalent to $576 million. अब आप ऑल ऑफ ए सडन अगस्त के बाद ये कहते हो कि सितंबर में आप ये कहते हो कि 8 मिलियन रेफ्यूजीज को कैंप में रखने के लिए यदि हम उनके ऊपर रोजाना 3 रुपए का खर्चा भी करते हैं तो 6 महीने का हमारे ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट निकल कर आएगी, इट वुड कम आउट एज 4,320 मिलियन रुपीस। अब यहां पर एक बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट ये कैलकुलेशन सितंबर में करके कहती है कि हमें इतना पैसा एक्चुअली में चाहिए। तो जब आपने अगस्त में डिमांड किया था 2000 मिलियन रुपीस का, तो उसका बेसिस क्या था, उसका आधार क्या था? आपने सही में कोई असेसमेंट किया था दैट वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, हमें 2000 मिलियन रुपीस चाहिए यहां पर जितने सारे लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? इसका मतलब आपने रैंडम कैलकुलेशन बनाया था। एक्चुअल असेसमेंट आपने सितंबर में किया। दैट मीन्स देयर इज अ पॉलिसी इन द कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट बिफोर सितंबर दे हैव नॉट एक्चुअली इन फैक्ट सीरियसली calculated as to what is the actual budget to be required in order to go for the maintenance of these 9.9 million refugees. In fact, सितंबर तक तो 9.9 नहीं हुए थे, लेकिन तकरीबन 8 मिलियन लोग तो आ चुके होंगे कि इनको टैकल करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट सीरियस। इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गवर्नमेंट में समझ में आ गया, ओ माय गॉड इतने सारे लोग आ गए, इनको हमें मेंटेन करना है और हमें कितना पैसा चाहिए आप, क्योंकि उनको लगने लगा कि यार अब ये इकोनॉमिक बर्डन हमें दिख रहा है। प्रत्यक्ष रूप में अब आपको दिख रहा था कि देयर वाज एन इकोनॉमिक बर्डन राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो आगे भी लिखा जा रहा है लास्ट लाइन, द गैलपिंग कॉस्ट ऑफ शेल्टरिंग द रेफ्यूजीज मेड ए मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट्स ओरिजिनल एस्टिमेट फॉर द फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब जो भी आपने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया था कि इतनी हमारी अर्निंग है और इतनी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, तो हमें ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है, हमें कम अर्निंग हो रही है, तो हमारा एक डेफिसिट रहेगा। तो आपने जो डेफिसिट किया था वो फालतू का गलत डेफिसिट था, आपको एक्चुअली में पता नहीं था कि डेफिसिट कितना होने वाला है।
तो पहले वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें आपको बहुत सारे डेटा दिए जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि इस डेटा के आधार पर आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर सकते हो, what idea that you can come out with respect to the government policies, government calculations, government sensitivity, seriousness and all that. ठीक है, ऐसे करके आप सेकंड वाले पैरा को पढ़ोगे, although it is not to be discussed right now क्योंकि we have a different agenda to cover right now at this moment of time, but let me tell you, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, जब आप सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे you will get to know कि एक्सपर्ट ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डिसीजंस दैट द गवर्नमेंट कुड टेक इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सो दैट विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें, क्योंकि सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ द रेफ्यूजी इज नॉट द सोल्यूशन, एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रोटेक्ट द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री एंड वी ऑल्सो नीड टू नो आर वी एबल टू टैकल दिस सिचुएशन। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या होना चाहिए, वो आपको सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। अब मेरा कंसर्न क्या है, यदि ये मान लीजिए पैराग्राफ आपके पेपर में आता है और आपको मालूम है कि इसमें 2 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के आए होंगे, और यदि आप इसको पेपर को देखो और जो सॉल्यूशंस देखो क्वेश्चन नंबर 1.1 का, जिसमें ये बोल रहा है कि assume that an equal number of refugees on the screen, you can read it, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूं उसको। assuming that an equal number of refugees came to India each day in the period August 1, 1971 to 15 December 1971, यदि हम ये मान ले कि हर रोज जो हमारे देश में रेफ्यूजी की संख्या आ रही है वो हर रोज समान है, इक्वल है, और ये आंकड़ा यदि हम 1 अगस्त 1971 से लेकर 15 दिसंबर 1971 तक लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी दी पर डे कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है पर डे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑल द रेफ्यूजीज, ठीक है ना, दैट द गवर्नमेंट वुड हैव टू इनकर एज ऑफ द एंड ऑफ द डे ऑन नवंबर 13, 1971 इन यूएस डॉलर्स। तो गवर्नमेंट के ऊपर कितना खर्चा बैठेगा यदि गवर्नमेंट खर्चा उठाना चाह रही है, तो कब से कब तक, 1 अगस्त 1971 से लेकर 13 नवंबर 1971। और खर्चा किस रूप में गवर्नमेंट करेगी, प्रत्येक रेफ्यूजी पर, प्रत्येक व्यक्ति पर रोजाना 3 रुपए का खर्चा होगा। अब देखो, जब ये सॉल्यूशन देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर में आप यदि सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि सर आप मेरे को 45 मिनट दे रहे हो, 40 क्वेश्चंस दे रहे हो, इतने सारे कंस्ट्रेंट दैट आप एक सवाल पे दोबारा नहीं जा सकते हो, ओके, या तो करो या तो छोड़ो, ओके, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड, मेरे को 40 क्वेश्चंस करने हैं, इनफैक्ट ये पेपर ऑनलाइन होगा, इनफैक्ट ये पेपर आप अपने घर से लिखेंगे या कहीं से भी लिखेंगे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, ओके, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको इतने सारे कंस्ट्रेंट के साथ ये पेपर लिखना है, और वो भी 40 क्वेश्चंस, and you have to bring out the best output from the mind. That is also a constraint. So with all such constraint you are supposed to write this paper. तो कुछ तो मुझे ये पहले जानना पड़ेगा कि मेरे में ऐसा क्या है, मैं किस चीज को अपने अंदर से पेपर में उठा के लाऊं कि मैं सर इस पेपर को इतना तो कर दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, टुमारो वी विल कंडक्ट ए मॉक टेस्ट पेपर, और इन दैट मॉक टेस्ट पेपर we'll talk about the concept of cutoff that is to be there in such kind of paper where the competition with the level of the paper is similar to that of what is represented in the paper। वो हम कल बात करेंगे। पर यदि आज मैं इस मेथड से जाऊं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप देखो मेरे सारे ऑप्शंस, $0.91 मिलियन, $1.2 मिलियन, $0.82 मिलियन, $0.76 मिलियन, they are close but they are not very close, but to calculate precisely to that perfection is going to be a matter of task, सभी के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और जिस पैटर्न पे ये प्रेजेंटेशन में आप देखोगे आंसर को टिक करके आपको दिया है, यदि आप इसके साथ जाओगे तो आप बिलीव करो, आप यकीन मानो, आपको काफी सारा टाइम तो लगेगा। और एग्जाम में जब आपके सामने से समय निकलेगा ना, रेत की तरह जब समय निकलता है,
तो बड़ा डर लगता है, और जब एक बार आपके अंदर डर आ गया ना तो आप वहीं पर हार जाते हो। इसीलिए इस पेपर को यदि आपको लिखना है ना तो आपको सैक्रिफाइसिंग मोड में आके पेपर लिखना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम करके अपना बेस्ट आएंगे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस पेपर में क्वेश्चंस को, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैथमेटिकल सेक्शंस राइट नाउ, उसको कैसे टैकल करते हैं। देखो जरा सा, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जान चुके हो कि आपके देश में जितने सारे रेफ्यूजीज आ रहे हैं, वो रेफ्यूजीज हर रोज सेम रेफ्यूजीज आ रहे हैं। सेम मतलब इक्वल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज आ रहे हैं। आप यदि क्वेश्चन को पढ़ो तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 अगस्त से लेकर 15 दिसंबर तक रेफ्यूजी सेम आए हैं। ओके, कितने रेफ्यूजीज आए हैं अगस्त 1 से लेकर 15 सितंबर तक? इट इज गिवन इन द डेटा, इट वाज रिटन एज 2.67 मिलियन। 2.67 मिलियन पॉपुलेशन आपके देश में आया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर 1 मिलियन था तो मैंने 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि आप देखो हर आंसर में मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट बगैर किए, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे तो फिर उसको वापस उस स्टेज में लाना पड़ेगा, तो विल नॉट बी वेस्टिंग अवर टाइम, तो उसको वैसे ही रहने दो आप, ठीक है। अब आप देखो 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक यदि इतने सारे लोग आए हैं तो इसमें मेरे को दिन कितने मिले, ठीक है ना। कैलेंडर का चैप्टर यदि आपने कभी किया है तो उसमें हम डेज कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो हमने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो यहां पर मेरे को बहुत काम आने वाला। देखो अगस्त के महीने में टोटल 31 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर फिर से 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, और दिसंबर 15 तारीख तक की बात चल रही है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं और देखता हूं कितना होता है। 5, 6 और 1 हो गया 7, 3 चौके 12 और 1 13, तो ये हो गया 137 डेज। आपके देश में, इनफैक्ट हमारे देश में 137 दिनों में 2.67 पॉपुलेशन आई है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ पीपल हु एंटर्ड ऑन ए डेली बेसिस? तो रेट कितना है पॉपुलेशन का? तो रेट कैलकुलेट करने के लिए तो आप बोलोगे कि सर टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, यही तो हम करेंगे। टोटल पॉपुलेशन 2.67 मिलियन पॉपुलेशन को वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 137। ये आ गया मेरे पास। रोज मेरे देश में इतने पॉपुलेशन एंटर हुआ है। अब गवर्नमेंट ने पूछा है कि आपको खर्चा कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है, और उसके लिए खर्चा आपको 1 अगस्त से लेकर 13 नवंबर तक लेके जाना है। तो अब मैं देखता हूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 13 तारीख तक टोटल कितने दिन होते हैं। 3, 4, 5, 3 या 9 और 1 10, 105। 105 दिन में मेरे देश में कितने लोग आए हैं? दिस इज ऑल दैट आई नीड टू नो फर्स्ट। तो मेरे पास टोटल पॉपुलेशन एंटर्ड इन द कंट्री वाज 2.67 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 105 मिलियन पॉपुलेशन, और हर व्यक्ति पे 3 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का काम चल रहा है। 2.67 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 105 इंटू 3 मिलियन। अब पॉपुलेशन से हो जाएगा रुपीस, इतना मिलियन रुपीस का खर्चा हो गया। ओके, लेकिन आपको आंसर मिलियन डॉलर में देना है। उसके लिए यदि आप पेपर में जाओगे, इट इज एब्सोल्युटली रिटर्न। सितंबर में जब गवर्नमेंट ने असेसमेंट किया था तो उसने कहा था कि भाई यदि मैं देखूं तो आई हैव द इंफॉर्मेशन दैट 4,320 मिलियन रुपीस ओके इज इक्विवेलेंट टू 576 मिलियन डॉलर। तो यहां पर मेरे को एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, मतलब $1 में कितना रुपया होता है, दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो यहां से ही आपको इंफॉर्मेशन को निकालना है। तो देख लेते हैं $1 की वैल्यू कितनी होगी। $1 इज इक्वल टू 4320। याद रखो ये मिलियन मिलियन आपस में कैंसिल हो गया तो मिलियन चला गया। 4320 डिवाइडेड बाय 576 रुपीज। ओके, ये मेरे पास रुपीज में आ गया। अब इसको दिख रहा है कि ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि
सर नीचे 576 है, ये 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड होगा, कर देता हूं मैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है, छोटे छोटे टर्म्स है, आई होप यू नो दैट। तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और ये 0, और 8 7 जा 56, 8 2 जा 16। 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 1 इज 4, 4 8 जा 32, यहाँ पर 4 1 इज 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से और कट सकता है, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 15। आपको मिल गया $1 इज इक्वल टू 15/2 रुपीज, मतलब 7.5 रुपए पड़ गया। कोशिश हमेशा ये करना आप लोग कि जो भी डेटा आपके सामने आए उसको आप रुपीज, उसको आप डेसिमल में ना रखें, उसको कोशिश करें कि फ्रैक्शन में रखें, क्योंकि फ्रैक्शन में चीजें थोड़ी सिंपल फॉर्म में निकलती है। तो $1 इज इक्वल टू 15.2 रुपीज, नो डाउट अबाउट इट। और यदि आपसे पूछा जाए 1 रुपी इज इक्वल टू कितना डॉलर, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 2/15 रुपीज। तो इस एक्सपेंडिचर को मैं पूरी तरह से डॉलर में यदि कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इस रुपीज को मैं डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 2.67 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 105 इंटू 3, और यहां पर 1 रुपी इज इक्वल टू 2/15 तो इंटू 2/15 ये डॉलर आ गया। क्योंकि यहां तो मैं लिख लिख के कर रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A small amount of practice is required, on the basis of which if you do it, I am sure that you will be able to tackle this problem. It is not a big deal. मैं आपके साथ में कुछ सवाल और भी सॉल्व करूंगा, and then I will tell you as to how to tackle such kind of questions, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूं। अब देखो जगह थोड़ी कम है तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। यहां पर मैं इस कैलकुलेशन को करता हूं, नीचे का डिनोमिनेटर मेरे लिए काफी डिफिकल्ट दिख रहा है, दैट इज 137। तो मेरे पास क्या कैलकुलेट करना है, 2.67 ये एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 137 ये एक वैल्यू है, इंटू 105, ठीक है ना, 3 रुपए है ये, इंटू 2/15। आपको दिख रहा है कि सर ये कुछ डेटा तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। सर 15 7 जार ये कैलकुलेट हो गया। सर ये अल्टीमेटली ना आई गॉट टू नो दैट इट इज कम आउट एज 2.67 इंटू 7 3 जार 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 137। सर now you can check this out that I have to divide the numerator by 137. So does it mean that I need to multiply the numerator and then whatever value that I would come out with, I have to divide it by 137? देखो अभी तक मैंने कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं किया, मेजर कैलकुलेशन अभी करना है। यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। That means there are so many candidates who are able to tackle a question just like this. और जब आप इतना दूर आ जाते हो तब आप ये कर नहीं सकते हो कि सर यहां तक सिर्फ मेरे को डिवाइड करना था तो मेरा आंसर निकल जाता है। और यहां पर बच्चे क्या करते हैं पता है, डिवाइड करने लगते हैं 137 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम एक मेथड सीखेंगे, वी कॉल इट एज एप्रोक्सीमेशन मेथड। एप्रोक्सीमेशन मेथड, अभी एप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है, हम हमेशा डिनोमिनेटर पे काम करते हैं, हम कभी भी न्यूमरेटर पे काम नहीं करते। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द आंसर विदाउट डिवाइडिंग ए नंबर, we can do it with the help of the method of approximation. And in this particular method, we always take the denominator into consideration. We do not talk about the numerator. तो देखो मैं न्यूमरेटर को वैसा का वैसा ही रखूंगा, I will not make any change with the numerator. अब ये स्टेप तो मैं बार बार लिख रहा हूं, आप एग्जाम में इसको बार बार थोड़ी ना लिखोगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो अब आप बोलो कि आप इस डिनोमिनेटर को ऐसा सरल रख दो कि मेरा बिना कैलकुलेशन के काम हो जाए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप 200 रख दीजिए डिनोमिनेटर को, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल रख सकते हो। सर आप 100 रख दीजिए, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100 रख कर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। बट हम लोग क्लास में हमेशा कहते हैं कि भाई 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो थोड़ा सा आप कैलकुलेट करते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की क्षमता रखो। मैं ना इसको क्या करता हूं, मैं इस डिनोमिनेटर का 150 रख रहा हूं। अब आप पूछोगे सर आप 150 क्यों रख रहे हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि 15 का टेबल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आना है, 15 का टेबल में पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये बेसिकली कितना हो गया 150 नीचे। अब इस जीरो होने के कारण आप बोल सकते हो सर क्या आप इस जीरो को हटा सकते हो? यहां हटा सकता हूं। कैसे हटा सकता हूं? सर यहां पर एक डेसिमल लगा देता हूं, 4.2 हो गया। अब इस 15 से मेरे को 2.67 को डिवाइड करना, तो मैं कर सकता हूं। देखो कैसे करते हैं, 15 का टेबल सबको आता है 0 पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा।
15 1 is 15 हो गया, बचेगा 11 117, तो 15 7 are 105, तो 105 फिर बचेगा 12 मतलब 120 मतलब 15 8 are 120, तो आपके पास है 0.178 इंटू 4.2, ये आ गया $1 मिलियन, आपके पास आ गया $1 मिलियन। जब आपने इसको अब यहां पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है बजाय के डिवीजन। मैंने बड़ा डिवीजन तो नहीं किया तो टाइम बचा ही होगा। अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 8 are 16, 2 7 are 14 plus 1 15, 2 1 is 2 plus 1 3 into 4 8 are 32, 7 4 are 28 31, 4 1 is 4 5 6 7, मेरे पास कितना वैल्यू आएगा 6 7 4 7। डेसिमल कितने के बाद लगेगा आप देख सकते हो, यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने कहा सर आपका जो डेसिमल है वो लगेगा, यहां पर था, इसको तो आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यू विल कम आउट दैट द डेसिमल वुड कम आउट एज 0.7476, isn't it? 0.7476. This is all that I have. Now the question is, 4 के बाद डेसिमल है, क्योंकि 3 तो ये नंबर हो गए और ये 4 हो गया, तो 4 के बाद जब मैं डेसिमल लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये मेरा आंसर करेक्ट है क्या, क्योंकि आपने तो डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया था। बस ये लर्निंग आपको सीखनी है, बस दैट्स द ओनली लर्निंग दैट यू नीड टू नो, जस्ट दैट। आपको सिर्फ ये पता करना है कि सर आपने क्या चेंज किया था। आप पता करोगे कि सर आपने 13 बढ़ा दिया था, यू हैव इंक्रीज्ड द डिनोमिनेटर बाय 13। यदि मैंने डिनोमिनेटर को 13 बढ़ाया है तो जो मेरा आंसर आया है वो मेरे एक्सपेक्टेड आंसर से थोड़ा सा कम आया है। तो यदि मैंने डिनोमिनेटर को यहां बढ़ाया है तो मुझे अपने आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज द लर्निंग। तो यदि मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया है तो मुझे आंसर बढ़ाना है, यदि मैंने डिनोमिनेटर को कम किया है तो मेरे को आंसर को भी कम करना पड़ेगा। अब सवाल ही उठता है कि मुझे कितना कम करना पड़ेगा। तो अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि 137 से जब आपने 150 किया, यू इंक्रीज्ड द वैल्यू बाय 13, सो बाय व्हाट परसेंट यू इंक्रीज्ड दिस वैल्यू। 37 के रिस्पेक्ट में आपने कितना परसेंट बढ़ाया, तो आप देखो 37 का 10% कितना होता है 13.7। हैंडी कैलकुलेशन सबको आना चाहिए। हैंडी कैलकुलेशन का मतलब होता है कि मेरे को 10% 1% कैलकुलेट करना आता है। यदि मैंने आपसे पूछा कि आपको एक मैं वैल्यू देता हूं 7469.00, क्या आप मेरे को 10% बता सकते हो इसका कितना होता है? आप बोलोगे सर शिफ्ट द डेसिमल टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय 1 डिजिट, यू विल बी एबल टू गेट द 10% ऑफ द वैल्यू। तो 10% कितना हो गया 746.9। 1% कितना हो गया? आप बोलोगे सर डेसिमल को 2 डिजिट खसका दीजिए, दिस डेसिमल वुड गेट शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 डिजिट, आई विल बी गेटिंग 74.69 एंड दिस इज नथिंग बट 1% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो यहां देखो मेरे पास 137.0 था ना, तो यदि मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड 1 डिजिट खसकाऊंगा तो कितना बनेगा 13.7। एक डिजिट खसकाने का मतलब क्या होता है? यदि मैंने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड 1 डिजिट खसकाया तो बेसिकली मैंने 10% कैलकुलेट किया। सो व्हाट इज 10% ऑफ द वैल्यू 137? इट इज 13.7। तो आप कह सकते हो कि सर आपने डिनोमिनेटर को 10%, तकरीबन 10%, पूरा नहीं 10% से थोड़ा कम, मतलब तकरीबन आपने 10% बढ़ाया। तो सर आप अपने आंसर में से 10% निकाल के इसी में ऐड कर दीजिए। इसका 10%, 0.7476 का 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं? शिफ्टिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय 1 डिजिट। तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा क्या? डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं 0.07476 हो गया मेरा 10%। कैलकुलेट करके देख लो मेरा आंसर आया कि मेरा आंसर नहीं आया। 6 6 6 12 13 का 3 कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1, 7 4 11 12 का 2 कैरी 1, ये आ गया मेरे पास 0.8223, मतलब अप्रोक्सीमेटली $0.82 मिलियन। अब आप बोलोगे कि सर आपका जो एक्चुअल आंसर है ये इससे 0.82 से जरा सा कम होगा, बहुत माइन्यूट कम होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने 10% बढ़ाया।
आपने एक्चुअली में जो डिनोमिनेटर को बढ़ाया था वो 13.7 नहीं बढ़ाया था, आपने 13 बढ़ाया था, मतलब 10% से थोड़ा सा कम, और यहां पर आपने अपने डिनोमिनेटर को 10% बढ़ाया, तो आपका आंसर 0.82 आया है, लेकिन आंसर इससे जरा सा कम आना चाहिए। नाउ व्हेन आई लुक एट द ऑप्शंस, मेरे पास 4 ऑप्शन है, यू कैन चेक दिस आउट। आपके पास 0.91 है, 1.2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, अपने आप आउट हो गए। अब 0.82 है और 0.76 है, तो 0.76 तो 0.82 से कम है, ठीक है ना, तो ये भी मेरा आउट हो गया। सो माय राइट आंसर वुड कम आउट एज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। अब देखो कितना एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आपने डिवाइड नहीं किया, यू हैव नॉट डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, आपने 137 से बिना डिवाइड किए आपने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने 150 लिया है, तो सर इज इट रियली नेसेसरी कि मैं 150 ही लूं? क्या मैं इसको अपने मर्जी से डेटा चेंज कर सकते हो? आप बिल्कुल अपने मर्जी से कर सकते हो, फिर से करके दिखाता हूं। 2.67 आपके पास है इंटू 42 डिवाइडेड बाय 137, ठीक है ना, और मैं इसको 137 को मैं इसको इक्विवेलेंट करके 2.67 इंटू 42 और 100 करना चाहता हूं, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता हूं, एफर्ट से नहीं डालना चाहता हूं। तो बच्चा कह सकता है कि सर यदि अप्रोक्सीमेशन से करना तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। तो आपने कितना कम कर दिया है? सर आपने 37 कम कर दिया। ओके सर, जब मैं इससे डिवाइड करूंगा माय आंसर वुड कम आउट एज 2.67 इंटू 0.42। ओके, 42 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.42 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट तो मेरे को करना पड़ेगा, 2.67 इंटू 0.42 करना पड़ेगा। तो करके देख लेते कितना आता है। देखो 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, वेरी नाइस, इंटू 4 7 28 2 मेरा कैरी, 4 6 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 4 2 8 9 10। अब आपने जब कैलकुलेट किया सारे वैल्यूज के लिखे, 6 4 10 11 12 का 2 कैरी 8, ये आ गया आपके पास। डेसिमल 4 के बाद तो आपके पास आ गया 1.12, बेसिकली आपका आंसर निकला 1.12। अब आपने कहा कि सर मेरा आंसर 1.12 आया, तो ये तो मेरा राइट आंसर नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेड आंसर इससे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सर आपने डिनोमिनेटर को कम किया। जब आप डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो आपका आंसर ज्यादा आता है, ठीक है ना। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। When I decrease the denominator, I'll get the bigger quotient. If I increase the denominator, I'll get the lower quotient. तो यहां पर जो मेरा quotient है 1.12, ये बड़ा निकल कर है, इसको मुझे कम करना है। कितना कम करना है? उसके लिए आपको इस जगह पर वापस आना है और आपको पता करना है कि आपने जो 37 कम किया था वो 37 137 का कितना परसेंट था। तो अब देखो इसका 10% है 13.7, इजंट इट? 20% है और 13.7, ये देखो 13 2 26। यदि मैं इसको 3 बार ऐड कर दूं तो देखो कितना आ जाता है, 7 3 21, 3 3 6 3 9 2 11 का 1 कैरी 1, तो ये जगह 41.1। तो सर आपने 30% लगभग कम कर दिया। ये 37 है और 30% होता है 41.1। 30% कभी 37 नहीं होता 137 का, बट चूंकि वी आर डीलिंग इट विद अप्रोक्सीमेशन, आप ये कर सकते हो, ये एडवांटेज आपको देगा। तो आप कह सकते हो कि सर आपने बेसिकली अपने डिनोमिनेटर को 30% कम कर दिया। तो आप अपने आंसर का 30% कम करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका 10% निकालो, 0.112 10% है तो 30% क्या होगा, मल्टीप्लाई करते 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 0.336। सर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 में से 6 गया तो 4 कैरी 1, फिर ये 4 बना 8 कैरी 1 4 और 6 और 1 7, ठीक है, कैरी 1 यही होगा ना, कैरी 1 आ जाएगा तो 0, तो आपके पास आ गया 0.078। आपका आंसर आया 0.078। अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठाना है यहां पर कि सर आपने जब 137 से 100 किया तो बेसिकली आपने 37 कम किया। यू डिक्रीज द वैल्यू नॉट बाय 30%
बट यू डिक्रीज द वैल्यू लेस देन 30%, तो यहां पर आपने जो आंसर से सब्ट्रैक्ट किया वो 30% को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब योर ओरिजिनल आंसर और योर एक्सपेक्टेड आंसर इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ 0.784। तो आप मेरे को आंसर वो ढूंढना है विच इज लिटिल मोर देन 0.784, एंड इन दैट केस आई वुड हैव ओनली द ऑप्शन सी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है ना, पहला ऑप्शन आप देख सकते हो इट इज नॉट लिटिल मोर देन 0.78, सेकंड भी नहीं हो सकता है, और लास्ट वाला तो देखो 0.76 है जो कि 0.78 से कम है, और मुझे ऐसा आंसर ढूंढना है विच इज ग्रेटर देन 0.78, सो आई एम फॉलोइंग विद द ऑप्शन 0.82, so therefore third is the right answer. This is called as method of approximation. तो ये method of approximation अभी आपको for the next 3-4 days you have to bring this calculation into your preparations. I am sure that if you put it in a very logical manner, in a very conceptual manner, you will not hesitate to utilize it in the paper. You will be having full confidence that नहीं मैं तो इसको यूज करूंगा। दो चार हम लोग और एग्जाम्पल के तौर पर समझ के देख लेते हैं, ठीक है ना, आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि कैसे करना होता है, ठीक है ना। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं और इन प्रश्नों को हम अप्रोक्सीमेशन की विधि से करेंगे, एंड विद दैट विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हम इसको समझ पा रहे कि नहीं, क्योंकि डेटा आपके पास डेसिमल वाले ज्यादा थे तो मुझे उसके साथ में एक्सेस करना पड़ा। जब आप लर्निंग करेंगे तो आप रैंडमली अपने कॉपी में 8-10 सवाल ऐसे लिख ले और एक एक करके आप कैलकुलेट कर ले, रोज 4-5 सवाल करिए, 7-8 दिन में आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो मैं एक सवाल रख रहा हूं आपके सामने, 1 2 6 9, कुछ भी रैंडमली रख दो, डिवाइडेड बाय 1410। अब आपको इसको डिवाइड करना, कितना आएगा। अब एग्जामिनर जो आंसर्स देगा वो काफी नजदीक में देगा, दैट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज। अब आप कहोगे कि सर इसको कैलकुलेट करने के लिए ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस, 1269 डिवाइडेड बाय, सर मैं इसको 1400 रख देता हूँ, 1400 इजी हो जाएगा सर। देखिए तो जब मैं इसको रखूंगा तो मैं इसको 14 से डिवाइड कर देता हूँ, 00 के कारण तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, चलो 14 से डिवाइड कर देते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं। अब 14 का टेबल सबको आना चाहिए, और यदि 14 का टेबल नहीं आ रहा तो गड़बड़ जाएगा। अब देखो 14 का जब टेबल आप पढ़ते हो ना, तो टेबल पढ़ने के बाद आप भूल जाओ, टेबल पढ़ने के बाद आप भूल जाओ, आप सिर्फ मल्टीपल्स याद रखो। 14 1 is 14, 14 2 is 28, 14 3 is 42, ऐसे करके आप जब पढ़ते हो, जब आप रेगुलर पैटर्न पे पढ़ते हो तो कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो उसको। लेकिन आप यदि 14 के मल्टीपल्स पढ़ो, 14 2 is 28, 14 3 is 42, 14 4 is 56, 14 5 is 70, फिर उसके बाद 84, उसके बाद 98, फिर 112, 126, फिर 140। अब जब टेबल पढ़ो ना तो आप ये मल्टीपल्स पढ़ो, मतलब 14 28 42 56 70, इज इट 70 84 98 112 126 और 140। तो अब आपको ना ये 126 दिख जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर आपको मालूम है कि 14 के मल्टीपल में 126 आता है, तो कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा। तो यदि मैं 14 से 126 को डिवाइड करो तो 14 9s are 126, तो ये आ जाएगा 9 कैलकुलेट किया, 0 आया, फिर पॉइंट लगाया, तो 14 5 is 70, 14 6 is 84 करीब करीब आ जाएगा। फिर 84 के बाद बचेगा 6, तो 14 4 is 56, ठीक है ना, और ये 00 के कारण ये डेसिमल पॉइंट इधर पे खसक जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.9064। डेसिमल के बाद यूजुअली एग्जामिनर आपको 2 पॉइंट देगा, तो आप 0.91 भी लिख सकते हो, बट अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। अब आप देखो कि आपने डिनोमिनेटर को कम किया क्या, हाँ सर डिनोमिनेटर को कम किया, कितना कम किया, 10 कम किया। 10 मतलब कितना होता है, 10 मतलब कितना होता है सर, इस 1410 का 1% भी नहीं होगा, 1% से कम है, इसका 1% है 14.10, तो आपने बेसिकली 1% से भी कम किया है, ठीक है। तो अब अप्रोक्सीमेटली आप कहो कि सर आपने 1% कम किया, इसका भी 1% निकाल के, क्योंकि आपने इसको कम किया तो इसमें से 1% सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 0.9064 का 1% निकालो और वो 1% इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0.9064 का 1% क्या होता है, डेसिमल को बाईं तरफ शिफ्ट करोगे 1 डिजिट, हो गया 10%, 2 डिजिट शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1%, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 009064।
दो 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 डिजिट शिफ्ट करना है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9 से 2 डिजिट तो ये हो गया आपके पास, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, -0.0090। इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 9 ये हो गया 7, कैरी 1 तो ये हो गया 9, आ गया 8 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.8974। अब आप कह सकते हो कि सर जब आपने 1410 से 1400 किया था, यू बेसिकली डिक्रीज द वैल्यू बाय 10, wherein 10 is not 1% of 1410, it is less than 1%। पर यहां पर आपने 1% कम किया, आपको 1% कम नहीं करना था, 1% से कम करना था। तो आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो इससे हल्का सा ज्यादा होगा, जो कि इतना नेग्लिजिबल होगा कि आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। तो यू कैन डेफिनेटली कम आउट विद एन आंसर 0.897। अब आप कहोगे कि सर आपने डिनोमिनेटर को तो यहां पर बहुत नजदीक रखा था, तो यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर द डिनोमिनेटर इज टू फार अवे, जैसे 12479 कुछ भी लिख लो, डिवाइडेड बाय 9 है लास्ट में, ठीक है, 2149 डिवाइडेड बाय 665 कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2149 कर दिया आपने और इस नंबर को आप 700 कर लो। तो अब देखो 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, 7 3 21, ठीक है ना, और 0 7 7 49, 307 और फिर नीचे 00, तो आपके पास डेसिमल आ गया यहाँ पर, तो आपका आंसर आ गया 3.07। बट योर एक्चुअल आंसर इज नॉट 3.07, आपका एक्चुअल आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा। कैसे पता करेंगे सर वो कितना होगा? फिर से देखो, आपने डिनोमिनेटर को क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को 35 बढ़ा दिया। जब आपने डिनोमिनेटर बढ़ाया तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो छोटा है, अब आप उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 665। 665 का 10% इज 66.5 है, 5% इज 33.5 है, 33.25 है। तो बेसिकली आपने 5% बढ़ा दिया डिनोमिनेटर को, इसीलिए मुझे इसका 3.07 का 5% निकाल के इसमें ऐड करना है। 1% कितना होगा, 10% कितना होगा 0.307, 1% कितना हो गया, ये हो गया 1%। 5% कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 3 15, तो इट वुड कम आउट एज 0.15। इसमें ऐड कर दो 0.1535। जब मैं ऐड करूंगा आई विल गेट टू नो 5 3 7 5 12 का 2 कैरी 1, तो माय आंसर वुड बी 3.22। अब चाहो तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लो, 2149 divided by 665, your answer would come close to 3.22, राइट। तो अब जो पेपर है, अब जो बैंगलोर का पेपर है जो अभी आप करने वाले हो, उन्होंने मन में कुछ भी नहीं रखा, सब आपके सामने रख दिया। अब आपको डिड्यूस करना है पेपर के थ्रू कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में कमी है, उस चीज को आपको सिर्फ टैकल करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, लीगल आपने जितना पढ़ा है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जितना इंग्लिश पढ़ा है वो सेटिस्फाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जितना क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके में थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि यदि फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना, जो कि बहुत अंदर तक आते हैं, सो इन दैट केस आपके लिए डिफिकल्ट होगा पेपर में आंसर करना, क्योंकि जो सैंपल पेपर में आप देखोगे जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो बेसिकली बहुत ही अंदर की बात थी, जो कि यूजुअली यूपीएससी में आता है। तो ऐसे सवाल यदि एक दो आपके सामने आ गए तो आपको डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा, ओके। और लास्ट बात मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जो भी आपने पढ़ा है उसको यूज तो कर सकते हो, बट यदि छोटी मोटी चीजों को लेकर उन्होंने कोई सामने सवाल बनाया है तो इन दैट केस आपको ये अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन टेक्निक बहुत काम आती है उस जगह पर जहां पर आपके पास कैलकुलेटर यूज करने की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। एक सवाल और देखेंगे इसमें, फिर हम वाइंड अप करेंगे जल्दी से। इन्होंने जो टेक्निक दिया है उसमें उन्होंने डिवाइड करके डेसिमल निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन इट गोज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब एग्जाम में जाते हैं तो हम इसको अप्लाई करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल, अज्यूम दैट, मैंने मैथमेटिक्स का ही अभी राइट ना उठाया है, इनफैक्ट बाकी के सवाल इजी है, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अज्यूम दैट इन 1971 द यूएस प्रोवाइडेड इंडिया फॉरेन एड ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना। यूएस ने आपको $500 मिलियन का
सपोर्ट दिया, यूके ने आपको 300 दिया तो ये हो गया 800, जापान ने आपको $10 मिलियन का दिया, ये हो गया 810। इफ द इंडियन गवर्नमेंट हैड स्पेंट 400 मिलियन डॉलर यूएस आउट ऑफ ऑल फॉरेन एड रिसीव्ड इन 1971 ऑन डिफेंस, खर्चा कर दिया, 810 मिला, उसमें से 400 चले गए, बचे कितने, $410 मिलियन, ठीक है ना, इन्होंने डिफेंस पे खर्चा कर दिया। एंड इफ इट डिड नॉट यूटिलाइज एनी फॉरेन रिजर्व्स फ्रॉम फॉरेन एड टू मेंटेन रेफ्यूजीज अंटिल December 15, 15 दिसंबर तक उन्होंने बिल्कुल भी पैसा यूज नहीं किया। देन फॉर हाउ मेनी डेज would the government be able to maintain the total number of refugees in India as on December 16, utilizing only reserves from foreign aid received from the US, UK and Japan in 1971? मतलब 16 दिसंबर से यदि आपको उस पैसे को इस्तेमाल करना है तो जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में आई है उस पॉपुलेशन को आप कितने दिनों तक, कितने समय तक खिला सकते हो? अब इस सवाल को यदि आप पढ़ोगे, इसको आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़कर आएंगे, उनको लगेगा यार कौन कैलकुलेट करे यार, मंथ, उसके बाद ये सब, ऑल दैट। बट बिलीव मी, इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट टफ। रीजन बीइंग, इसमें जगह थोड़ी कम है तो मैं यहीं पर कर देता हूं। अब आप गौर से देखो कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी आई, टोटल पॉपुलेशन। आई हैव ए वेरी लिमिटेड स्पेस, जहां पर भी स्पेस है मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूं। यहां पर मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, यहां मैं यूज कर लेता हूं। आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन है दैट वाज 9.9 मिलियन, बिकॉज आपके पास 7.23, ये जुलाई 31 तक 7.23 आ गई थी, और उसके बाद आपके पास 2.67 आई है। इसको यदि मैं कैलकुलेट करूंगा, 7 3 10 का 0 कैरी 1 9 और ये 9.9 मिलियन पॉपुलेशन आपके देश में आ चुकी है। 810 मिलियन डॉलर्स आपके पास थे, 400 उसमें से आपने खर्चा कर दिए, अब आपके पास बचा है $410 मिलियन, ठीक है, इतने डॉलर आपके पास बचा है। आपको खर्चा तो बहुत अच्छे से पता है कि ₹3 पर पर्सन पे खर्चा करना है, क्योंकि आपके मेन पार्ट, पैसेज के मेन पार्ट में दिया हुआ है ₹3 प्रति खर्चा। गवर्नमेंट ने जब अपना असेसमेंट किया सितंबर के महीने में तब पता चला, ठीक है। तो अब रुपीज में मुझे सब कैलकुलेट करना है, तो डॉलर को मैं रुपीज में कैलकुलेट कर लेता हूं। आपने कैलकुलेट किया था $1 इज इक्वल टू 15/2 रुपीज, तो मैं इसको 410 इंटू 15/2 कर लेता हूं, इतना मिलियन रुपीज बचे मेरे पास, ओके। अब इस रुपीज में मुझे कितने लोगों को खिलाना है, कितने मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो दिस इज द टोटल मनी, दिस इज द टोटल मनी। इस पैसे में मेरे को इतनी पॉपुलेशन को खिलानी है, हर व्यक्ति को ₹3 खर्चा करना, 9.9 मिलियन। तो मेरा पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे कितना है, एक दिन का एक्सपेंडिचर कितना पता कर सकते हैं अपन, 9.9 मिलियन पॉपुलेशन इंटू ₹3। अब ये पूरा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा, मैं मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये टोटल आ गया। अब नाउ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एड कैन लास्ट, कितने दिन से खिला सकता हूं, इज इक्वल टू टोटल पैसा जो मेरे पास है, कितना पैसा है, 410 इंटू 15/2 मिलियन रुपीस, और एक दिन में कितना खर्चा होना है उससे मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 9.9 इंटू 3 मिलियन रुपीस। तो ये सब खर्च, इतना मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, रोजाना इतना खर्चा है, जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा आई विल गेट द नंबर ऑफ डेज। अब आप सोचो, 3 से तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 3 5 15, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये जो 9.9 है, ये जो 9.9 है बेसिकली, ये तो तकरीबन 10 हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यदि मैं 410 को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 2 4 2 5 10 इंटू 5, ओके।
और इसको 9.9 को यदि मैं 10 मान लेता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, तो कितना हो जाएगा 20.5 इंटू 5. ओके, 20.5 इंटू 5, सो 5 5 25 कैरी 2. ओके, और 5 2 10, 102 दिन 102.5, 102 दिन और 12 घंटे खिला पाऊंगा मैं. अब देखो यहां पर आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, तो आपका आंसर थोड़ा सा कम आया है, क्योंकि आप जब डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो 9.9 से आपने 10 किया, यू गॉट एन आंसर विच इज लिटिल लेस देन द एक्सपेक्टेड. तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो कितना होगा, 202 से 203 हो सकता है, या 102 101 102.5 से 103 हो सकता है, या 104 डेज हो सकता है. और क्या होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 103 तक जाएगा मैक्सिमम. 103 दिन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मंथ्स, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मंथ्स. मैं यदि कैलकुलेट करता हूं, 16 दिसंबर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यदि मैं मान के चलता हूं 30 दिन का ऑन एन एवरेज यदि महीना है, तो 90 दिन का 3 महीना हो गया, 3 मंथ, प्लस 13 दिन बचे, 13 दिन बचे या 14 दिन बचेंगे, तो आधा महीना नहीं हो पा रहा है. मतलब 3 मंथ्स प्लस 13 और 14 डेज. 14 डेज नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, बट मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं कि सर यदि हो गया तो भी आप पूरे 3.5 महीने नहीं खिला सकते हो. दैट मीन्स 3 months and 13 days completely. Now if I go with the options which is given in the paper, अब आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि मोर देन 3 months पहला ऑप्शन, मोर देन 3 months बट लेस देन 3.5 months, यही हमारा आ रहा था. सेकंड में लिखा है मोर देन 4 months, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. लेस देन 4 months बट मोर देन 3.4 months, ये तो और बात हो गई. लेस देन 3 months. अब देखो सेकंड वाला बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. अब आपको लग रहा है कि सर यदि सर 3.5 महीना होता तो, मतलब सर यदि कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसमें आप कंफ्यूज हो उसमें बोल रहे हैं कि 4 महीने से, थर्ड वाले में बोल रहे हैं 4 महीने से ज्यादा लेकिन 3.5 महीने से, 4 महीने से कम लेकिन 3.5 महीने से ज्यादा. ये बात आप हजम नहीं कर पाते, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, and that is option number first to answer, and that's how the answer of the question is. So please, all I am saying that any information that you are finding it out in the passage that are in data, आप प्लीज उसको ध्यान से एक बार पढ़ लो. इस पेपर में तकलीफ 100% आपको होगी, आपको लगेगा बार बार कि सर पढ़ने की जल्दबाजी होगी, क्योंकि आई एम हैविंग ओनली 45 minutes एंड दैट टू सर मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है, 500 वर्ड्स मिनिमम होगा, दैट मीन्स मेरे को 2000 वर्ड पढ़ना है, मेरे को 2000 वर्ड को पढ़ के 40 क्वेश्चंस को लगाना है. ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा डेटा को कंजर्व करके ब्रेन में रखने की थोड़ी क्षमता आप कैलकुलेट करो फॉर द नेक्स्ट 4-5 days. आई एम 100% श्योर दैट पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से with respect to what is the demand of the paper, you will be able to solve this paper, right? There is no point right now to criticize as to the decision is not right, how could somebody is going to write and all that. It is definitely absurd, because either we are going to appear on 12th or we are not. So if we are not, then we will definitely criticize. There is no problem, right? Because I have the same feeling कि यार ये तो गलत है यार, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. At the very last moment, why should somebody go for a different entrance examination? ठीक है ना, where the pattern of exam is absolutely discriminatory. You cannot open the examination at a very short notice. बहुत सारी बातें, बहुत सारे argument है, but believe me, we are not going to walk in this particular path because it is not for the benefits of the students. Because again I am telling that only 0.1% of CLAT population is going to select for NLSIU Bangalore. The 99.9% of CLAT population will not go to NLSIU Bangalore. ये व्यवहारिक बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, इसलिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो यदि मेरा सिलेक्शन बैंगलोर में नहीं होता है 0.25 मार्क्स के कारण, तो बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का 20 नंबर्स के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ होगा. सो आई एम दैट 99.9% of the population. This decision of Bangalore is not going to impact the life of 99.9% of CLAT population. But the problem is, I am not able to know who are those 99.1% of the population. And that's the problem. And that's the reason why we have to work on this particular theme. And the last thing that I would like to conclude and end this session
देखो हर एक सवाल पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो -0.5 गए आपके कम से, और यदि आप छोड़कर आते हो तो -0.25 भी कटेंगे। दैट मीन्स नुकसान तो आपका होगा, ठीक है। बहुत कम नुकसान हो ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि क्लैट के पेपर में जो नंबरिंग है, जो नंबर्स एक सवाल राइट होने पे मिलता है और एक रॉन्ग होने पे जो कटता है, और अटेम्प्ट ना करने पे मेरे को जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये भी उसी प्रकार है। यहां पर -0.5 कट रहा है गलत होने पर और -0.25 कट रहा है सवाल को अटेम्प्ट ना करने पर। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड इफ यू रियली नो दैट आई एम वेरी क्लोज बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो अटेम्प्ट करना। बट यदि आपको थोड़ा ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप छोड़ देना उसको, आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उनको अटेम्प्ट करना तो आप बहुत ही श्योर हो। लेकिन राइट होने पर 2 नंबर का इंक्रीमेंट है, 2 नंबर इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ बिग डिफरेंस, क्योंकि यदि 1 नंबर राइट होने पर मिलता तो ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा क्रिएट नहीं होता, बट राइट होने पर 2 नंबर का डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यदि आपको 10, 12, 15% का डाउट हो रहा है और आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में बाउंड्री बनी हुई है, आई हैव प्रिपेयर्ड अक्रॉस ऑल दी फ्रॉम ऑल दी वैरायटी ऑफ सोर्सेस, तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है, बट द रिस्क हैज टू बी with wisdom. The risk should not be random, the risk has to be on the basis of some rationality, ठीक है ना। इसीलिए डेटा को ध्यान से पढ़ने के बाद ही रिस्क लेना, ठीक है। और ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर राइटिंग एन एग्जाम, आपका भला नहीं होगा। बट इफ यू राइटिंग दिस एग्जाम विद अ कॉन्सेप्ट, बिलीव मी आपका भला होगा। टुमारो वी हैव ए मॉक ऑन एनलैट, तो मैं इस मॉक को पब्लिक भी कर दूंगा। आई विल गिव यू द सोर्स, इफ एनीबडी विश टू राइट दिस मॉक ही इज वेलकम, देयर इज नो चार्ज फॉर दीज मॉक्स, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। जब भी ये मॉक मैं लगा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग।